Good morning, students. Today we are starting with a lesson of geography, uh, 13th lesson, types, and rather in geography, it is the first lesson, types of resources, natural resources. Now, what you will be learning in this now lesson first, we are talking about that first, and is the what is the objective? What will you learn from here? Types of resources, the sources which you are getting from the mother earth. Two types of resources there can be. It can be a natural resources and it can be a human made resources. Now first we will talk about the natural resources and their classification means उनकी क्लासिफाइड इंटू डिवीजन पार्टीशन किया गया है, जो भी है जिस तरह से उनको डिस्क्रिमिनेट करके डिफरेंशिएट किया गया है, द वे दे हैव बीन डिफरेंशिएटेड. नाउ नेक्स्ट इज बिकम्स द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, द ह्यूमन रिसोर्सेज and another thing is comes along which is natural changes which happened just because of human resources. Understood? We are having 3 points to study today. One is the natural resources and their classification, means what how it has been divided. नेचर ने हमें दिया हुआ चीज़ और उसकी डिवीजन हमने किस तरह से करना है. सेकंड इज द ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, एज वॉट एवर जो वॉट एवर द नेचुरल थिंग्स वी हैव गॉट, द चेंजेस विच ह्यूमन मेड बिहाइंड इट, whatever the changes they wanted to do, whatever way the nature they have done development, we can say, from barbarism to the civilized condition. We have changed many things as we have evolved fire, we have got nature, water, then we have built reservoirs, dams, everything. This changes whatever human has done. And the third thing is due to human beings, the changes which has come in the nature. Okay, नेचर ने जो चेंजेस हमारे लिए, फर्स्ट थिंग इज ग्लोबल वार्मिंग, सेकेंड थिंग इज पोल्यूशन राइज, थर्ड थिंग इज कटिंग ऑफ ट्रीज, ये सब चीज़ें हैं और उनके बाद देन वी विल बी द कंजर्वेशन पार्ट. कंजर्वेशन मीन्स कंजर्वेशन इट सेल्फ सेज टू कंजर्व समथिंग, टू सिक्योर समथिंग, कुछ संभाल के रखना. इन तीनों चीज़ों के साथ जो लास्ट इज थिंग इज, जब हमें ह्यूमन को पता चला कि वी कैन नॉट ओनली टेक फ्रॉम मदर अर्थ, वी ऑल्सो हैव टू protect mother earth, then this comes into existence, that is called as conservation of the resources. Now first we will take a natural resources are the gift given by the nature. Now here in your text, if you are having textbook, if you don't have the textbook, you will just see these things. It is divided into this way. Now you will not able to read because it will give the lateral thing, it ulta dikh raha hai, पर इसीलिए इसको one thing, two things and the third thing. The most important thing is it is showing the lateral figure to you, so you will not able to see. I will just read for you all. Fine. I will just also click photographs of this and I will send it, then you will get a clear picture. Fine. Natural resources means the natural resources are the gifts of nature which is the useful to us. Now resource means जो भी source of nature, the nature which is giving as a source and which is useful for human being. Okay, these includes soil, water, forest, wildlife and minerals. These are the 5 things which mother earth has given us. Now second comes into the exist. I will just start the preface of this lesson so you will understand what we are going to study throughout the lecture. Human made resources mainly include our technical expertise, government structures, political and economical institutions, and social and cultural setups. Um, सच एज फॉर एग्जाम्पल हाउसेस एंड द रोड्स. क्या किया ह्यूमन ने, उस चीज़ पर आधारित करके उस चीज़ को नेचुरल रिसोर्स को अपने हाथ में रख कर कि हमें ये चीज़ मिल सकता है. ओके, फ्रॉम सॉइल वी विल गेट दिस, फ्रॉम फॉरेस्ट वी विल गेट दिस, फ्रॉम वाइल्ड लाइफ वी विल गेट दिस. इसके मुताबिक टेक्निकल एक्सपर्टाइज किया उन्होंने, एक्सपर्ट किया है अपने आप को. दे हैव बिल्ड देमसेल्फ, दे मेड देमसेल्फ एक्सपर्ट्स
इन गेटिंग द एक्सकैवेशन फ्रॉम देम, उनसे ज़्यादा लेने के लिए उन्होंने अपने आप को एक्सपर्ट किया. देन कम्स द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स. They have formed a government. Okay, they have formed how they will be done, how who will take what, which side will be taken more, which side will be taken less, these all things. Okay, next political things, different policies. This country will take, this country has uranium, this country has iron, this has country. Now आपस में लेन देन, आपस में उसका ग्रोथ, जो भी ये सब चीज़ें. देन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. देर आर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, अगेन सेम, इकोनॉमी मीन्स करेंसी एंड मनी एंड वॉट यू विल गिव एंड वॉट आई विल टेक. देन कम्स द सोशल एंड द कल्चरल सेक्टर. इसके पीछे बनने के लिए जो सोसाइटी बनती है, उसके इफ़ेक्ट्स का, उसके प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स का. देन इन ऑल्सो इन द कल्चरल सेक्टर, उसमें उसका इफेक्ट इन द कल्चर ऑल्सो goes on. Now for example, the only small example is given here is houses and the roads. Okay, now this also has given us a third thing which human has done for the nature. Human resources constitute human beings themselves. Now human has also created something. तो एक क्रिएशन होने के बाद उसका जो भी इफ़ेक्ट होता है, उसके ऊपर जो भी रिफॉर्म्स होते हैं, उसके ऊपर जो भी काम होता है, जैसे अभी हमने कहा बिजनेस सिर्फ बिजनेस हो गया. ओके, बिजनेस हैज स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया चाइना. नाउ द पर्सन विल नॉट वॉक फ्रॉम इंडिया टू चाइना. Okay, he can, okay, one day he will walk, but how can he take tons of things and walk together? He needs truck, he needs transport, the transport business come along with him. Okay, then he needs some tourism, he needs some person to fly over that country. तो these things जो है, ये सब एक के साथ एक रिलेटेड होकर जो बिजनेस बना है, ह्यूमन कल्चर में बिजनेस बना है, that becomes an human resources. Okay, now we'll start the proper reading and the lesson description. Now here, in this process of evolution development, humans have discovered a great variety of resources in nature, and created many others with the help of the different technologies. They have brightened up themselves, and they have created themselves, and they have grown up themselves. In this chapter we study the major types of resources, how the useful and valuable are making the human lives comfortable. What was the perspective behind this? नेचर, मदर अर्थ को करना था, किसी को प्रोग्रेस देना था, अर्थ को सिविलाइज करना था? नहीं. ओनली वन रीज़न वॉज देयर, टू कंफर्ट द ह्यूमन लाइफ. स्लोली एंड ग्रेजुअली, एक्सक्यूज मी, slowly and gradually it happened only this, that it has continuously raised up himself, and उन्होंने एक ही ऑब्जेक्टिव था, कंफर्टेबल ऑफ योर ऑल ह्यूमन लाइफ. एवरीबडी wanted to comfort your human life, their own lives. So that is why these techniques and new things were evolved. Why it is important to conserve these resources. Now इनको बचाने की ज़रूरत क्या है? See, some things are extensible, they are perishable. कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग वो चलेगा ऐसा नहीं है. सिंपल ड्रिंकिंग वाटर ही समझ लीजिए. ड्रिंकिंग वाटर इज़ गेटिंग पेरिश्ड, इट इज़ बीन गेटिंग पेरिश्ड, इट इज़ बीन गेटिंग कम होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि हमारे पास, हम उसकी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं. द होल अर्थ इज़ गेटिंग इनटू द वाटर ऑफ, सॉल्टी वाटर का मात्रा बढ़ रहा है, स्वीट वाटर का मात्रा कम होता जा रहा है, घटता ही जा रहा है. दिस इज़ द ऑल्सो वन रीज़न. Okay, resources, any objects, it is used to making the life of human beings comfortable. Comfortable is a resource. ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल बनाने के लिए ओनली रिसोर्स. वॉट एवर वी ईट, यूज़ एंड इवन आर सी अराउंड अस इज़ द रिसोर्स. वॉट इज़ बीइंग बाय रिसोर्स? जो भी कुछ हम खाते हैं, देखते हैं, करते हैं, यूज़ करते हैं, आसपास देखते हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड एज रिसोर्स. ये सिंपल एक वर्ड है रिसोर्स. ये हमारे लिए रिसोर्स किया गया है. सोर्स जो है उसको प्रोसेस करके हमारे लिए प्राप्त किया गया है, or has been created by some type of resource. Some or the other types of resources we have got it from it. A resource is
मस्ट सेटिस्फाइड अ नीड। कोई भी चीज़ बनाने के लिए, अगर आज मोबाइल बनाया है तो किस लिए बनाया है? ह्यूमन लाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए। शुड बी डेवलप्ड एंड यूज्ड, उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसका मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए। शुड बी accessible फॉर ह्यूमन्स, एक्सेप्टेबल बाय वुमेंस। एक्सेसिबल मतलब यूज़ करने में आ जाना चाहिए, रेगुलर लाइफ में एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। शुड हैव सम वैल्यू इकोनॉमिक और सोशल एंड मैनी कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन द वेल्थ। इस चीज़ का क्या है? इट शुड बी वैल्यूएबल, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो आया है, सोशली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया है, या किसी तरह से उसकी कंट्रीब्यूशन हमारी वेल्थ इंक्रीज करने में हेल्प करता है, उसको वेल्थ हमारी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। शुड बी चीप एट दिस डेवलपिंग रिसोर्स, शुड नॉट कॉस्ट टू मच। एक और चीज़ है, अगर एक छोटी चीज़ मोबाइल का दाम 2-4 लाख रुपए है, कोई खरीदेगा? कोई मीन्स, मुझे याद है जब मोबाइल पहले पहले स्टार्ट हुआ था, द मोबाइल कॉल्स वेयर, आजकल तो इनकमिंग फ्री है, आउटगोइंग फ्री होता है, कितना कुछ उसके भी है, हार्डली 10 पैसा, 30 पैसा, 25 पैसा पर कॉल होता है। इट इज़ सो चीप, मैनी आर प्राइस मोर लेस देन दैट ऑल्सो। बट वेन इनिशियली मोबाइल स्टार्टेड, मोबाइल का कॉल जब होता था, इट वॉज 35 रुपीज़ पर मिनट। इट वॉज 35 रुपीज़ पर मिनट। हमारे घर में ही एक मोबाइल था और उस मोबाइल से बात करने के लिए हमें 35 रुपीज़ देना पड़ता था 1 मिनट के लिए बात करने के लिए। इट वॉज सो कॉस्टली। कहाँ 35 और कहाँ 35 पैसा, आजकल तो शायद 35 पैसा भी नहीं है उसके लिए, 1 पैसा कॉल है, ऐसा कुछ है। ओके, तो दिस इज़ हाउ इट मच ऑफ कॉस्ट इट इज़ यूज्ड फॉर। तो उसको डिक्रीज़ करके और सस्ते में और सस्ते में और सस्ते में और सस्ते में, हु हेल्प्ड अस दिस? चाइना मार्केट हैज़ गिवन अस दिस बेस्ट थिंग। चाइना चीज़ 10 रुपये में मिलती है, बाहर की कोई महंगी ये चीज़ है, सेम चीज़ है। अगर आप ये कंपास का ये कवर देखते हो, ये अगर चाइना मेड है तो ये आपको 5 रुपये में मिल जाएगा। अगर ये इंडिया मेड है या फिर आप कोई और कंट्री का मेड है तो ये एटलीस्ट इट विल गो फॉर 50 रुपीज़। This is the difference between China, Mall and this. So this China products has made us the easiest. So in every works of life, in every corner of life, China products are included and accepted. Now should be cheap at the developing, and that is developing the resources of should be cost too much, not should not cost too much. Now should require suit the requirement and the new technology in the level of development. It should be also in the form of न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अपने रेगुलर डेवलपमेंट के लिए उसकी इस इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा किफ़ायत और अच्छे से होना चाहिए। दिस इज़ द बेसिक थिंग, इट शुड बी वेरी मच यूज़फुल फॉर अस and technology savvy, technology wise also it should be upgraded. Okay, classification of resources. Now a general resources are categorized into 3 broad types: natural, human made and human natural resources. I told you what it is. 3 main types resources are into natural, human and human resources. Natural, human made and human resources. Now here natural wheels comes under the one thing is which is the origin from where we are getting it. as iron, हमें आज स्टील की चीज़ मिलती है, प्लास्टिक की चीज़ मिलती है। प्लास्टिक जो चीज़ मिलती है इसका ओरिजिनल केमिकल क्या है? पॉलीप्रॉपिलीन. This is the polypropylene chemical. This polypropylene has been used in every works of life. Okay, the origin chemical is the polypropylene, and that has been developed into the stage of development में जिस तरह से use हुआ है. Then renewability. What is the renewability means? Sorry. What is the renewability means? That this is being renewed or not, this can be used in a renewed form or not, can be recycled or not, reused, renewed or recycled, this can be donated or not. Then it is again origin से हमें क्या मिलता है is biotic or abiotic. When it, I will just show you this, but you will not able to see because it is giving a lateral. Now everybody will draw this
everybody will draw this chart in your lesson before you write the question and answers. Before you write the question and answers, this chart should be there in the exercise. Write the name of your lesson and write this, okay? And I will just click this and send it today itself with after the video. Fine, go through it, write like this as it is, so it will give you the gist of the lesson. Okay, now the state development renewable, which is called as biotic and abiotic. Abiotic means from the soil and water. It is not a living thing. It's not a living thing. Biotic means a living wild and vegetation. It's a living life and the vegetation. Stage of development, in which stage of development it is a potential development और इट इज़ एक्चुअल डेवलपमेंट. इट इज़ पोटेंशियल मतलब किसी तरह का पोटेंशियली राइज होता है तब उसकी बनती है. जैसे हम लावा निकलते, लावा के साल भर निकलता रहता है. अगर वो इरप्शन हुआ तब उसमें से लावा निकला, तब उसमें से जो केमिकल्स निकलते हैं उसमें से वो जो बैक्टीरियाज, उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरियाज वायरसेस रहते हैं, वो जब निकलता है दैट बिकम्स द वायरिक. नाउ हियर अगेन tidal effect. What is tidal effect? Every month, every new moon and full moon, there is a tidal effect on the water, on the white water, and that water के waves की चढ़ उतार जो होती है उसका इफेक्ट में वो बढ़ता है या कम होता है. सोलर एनर्जी में बढ़ती है या कम. दिस इज़ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. देयर इज चेंज. एंड एक्चुअल जो है वो हमें जो खोद कर मिलता है, मीन्स जो मट्टी के नीचे है, खोद कर ईजीली अवेलेबल है, वो है एक्चुअल एंड फिजिकलाइज पार्ट मिलता है हमें, ताकि हमें फिजिकल टच करके हमें पता चले. दैट इज़ द आयरन ओर, कोल, डायमंड, gold, all these all these metals. Okay, now here renewability. What is the renewability? Means it is renewed or reused, which can be reused. Renewable means the forest and the air. फॉरेस्ट से मिलता है, जो भी चीज़ फॉरेस्ट से मिलता है, वुड कैन बी रिन्यूड. येस, इट कैन बी अगेन प्लांटेड, वी कैन गेट अनदर वुड. नाउ नॉन रिन्यूएबल, मिनरल ओर्स, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा. नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसका रिन्यू नहीं हो सकता है, वापस एक बार ख़त्म हो जाने के बाद उसको वापस रीमेक नहीं कर सकते. दैट इज कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल. नाउ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरली अकरिंग मिनरल्स आर सपोर्टेड लाइफ सच एज वाटर, एयर एंड द सनलाइट, और रिसोर्सेज दैट satisfies the human wants. Such food is called as raw material, which is seen in the mineral fuels and the natural oil. Now what is the raw material? Raw material we get from water, air, sunlight, and the resources from satisfies the human wants. इंसान के ज़रूरत के लिए जो हमें नीचे से खनिज से मिलता है वो चीज़ें क्या है? रॉ मटेरियल है, इन द रॉ कंडीशन, विच हैज़ टू बी just changed, refined, and make it into a new one. Now what are the raw materials? Resources are most vital means of satisfying the different human wants or needs. Natural resources like wood pulp and waterfall. तैयार कर सकोगे वाटरफॉल? कहीं भी कितनी भी हम कर सकते हैं, वाटरफॉल फाउंटेन बना सकते हैं, पर वाटरफॉल तैयार नहीं कर सकते हैं. अंडरस्टूड? नाउ हियर क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Natural resources can be further classified into two basic origin and stage of development. Two things: origin and stage of development. Stage of development and renewability. Renewability. These criteria, along with the classification of natural resources based on each, these are discussed below. Now, what do you mean by things as origin? जो origin है, तीन चीज़ों में बटा है. वो क्या है? origin, then it is development stage, and it is renewability. Okay, now first we will go through the origin. The basis on their origin, or they have been derived from the resources, can be divided into biotic and abiotic. Biotic means what? बायोटिक एंड अबायोटिक. अबायोटिक रिसोर्सेज कंप्लीट जिसमें जान नहीं होती है, जिस रिसोर्स में देर इज़ नो लाइफ, दैट इज़ कॉल्ड एज अबायोटिक, एंड विच देर इज़ लाइफ, दैट इज़ कॉल्ड एज बायोटिक. Okay, and then abiotic resources includes land, utilizing the settlement of soil, or for cultivation, water, and for survival, and minerals. क्या क्या यूज़ होता है? Soil,
then soil, water and minerals. These are abiotic things. इनमें जान नहीं होती है, पर पानी हमारे लिए जान है. ह्यूमन लोगों के लिए वाटर इज कॉल्ड एज जीवन दान, राइट. वाटर जीवन दान है. Then biotic resources are क्या है? Biotic resources include the natural vegetation, forest life, natural vegetation and forest, wildlife, aquatic ecosystem and both the fresh water and the salt water. Both aquatic ecosystem. Aquatic means what? Aquatic plants are the animals and plants that are staying underwater. और जो पानी में उगते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट्स या ये कहते हैं, एनिमल्स रहते हैं कहते हैं. इकोसिस्टम मीन्स उधर का एक सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम. व्हाट इज इकोलॉजिकल सिस्टम? इकोलॉजी मतलब उनकी जो बढ़ने की, उनकी जो सिस्टम है, हाउ टू दे गो वन आफ्टर, मीन्स हाउ अ बिगर फिश इट्स अ स्मॉलर फिश एंड द स्मॉलर फिश लेज ऑन द stays on algae and all. Algae are getting, this is the ecology, the system which goes on, the system where how the cycle goes on, that is called as the food cycle or the working cycle of ecosystem under the water is called as aquatic ecosystem. Both of fresh water. Fresh water means जो पानी हम पी सकते हैं, जो मीठा पानी हम बोलते हैं, the fresh water, or as well as the salt water. Fine. Salt water where we get in rivers and sweet water. Salt water is the sea water or oceans water. Fine. Now we will go to the now we will go to the next example, the stage of development. Now next topic is stage of development. The resources can be classified as a potential or actual depending on whether they are being developed currently or they are available for the future development. Now many things which we see which can be get now itself and used immediately, as fruits we will say. As fruits, if we are getting from the vegetation, we are getting it, we can consume it immediately. But some things are to be processed, some things are to be done, some stages has to be developed. For their processing work is going to be gone. That is called as stages of resources, stage development resource. Okay. Resources that can be classified into potential and actual depending on the whether they are being developed currently or available for the future development. They are also means have to be used immediately and currently which can be used, or otherwise we have to just wait for the future development. So future उसमें और कुछ changes हो and then we get use and consume it. For it is potential, and that is again stage of development can be divided into two things. What is that? Potential resources and actual resources. Now potential resources are what? These sources are known as to be exist as being located under being utilized and the development presently. अभी इसी वक्त जिस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिल गया उसको इमीडिएटली हमने यूज़ कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड एज potential used. Okay, they may be developed and utilized for the future. लेटर ऑन जो चीज़ों को हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम उसे पोटेंशियल मीन्स हाउ आई विल टेल यू अगेन वन. दीज रिसोर्सेज आर नोन एज एग्जिस्टेंस कैन बी लोकेटेड, कैन इट हैव बीन लोकेटेड कि यहाँ पर है. मतलब जैसे हम अभी कहें कि बिहार में हमें माइंस है. बिहार इज़ रिच विथ माइंस, डिफरेंट टाइप्स, आयरन ओन माइंस एंड कोल माइंस. ओके, नाउ हमें पता है कोल मिलता है, तो उसमें से वो खन कर हम डायरेक्टली आग में जला सकते हैं क्या? नहीं, उसका एक प्रोसीजर होता है. उसको वी हैव टू वेट फॉर इट, वी हैव टू कम आउट, वी हैव टू एक्सकैवेट दैट थिंग्स, वी हैव टू वेट फॉर दैट. सेम थिंग नाउ टाइडल पावर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी. पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें 15 दिन का गैप करना पड़ता है, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा में मैक्सिमम टाइडल इफेक्ट्स होते हैं. तो टाइडल इफेक्ट्स होने पर टाइड्स मीन्स विच इज़ द इफेक्ट्स which is seen in the sea water. अमावस्या में और पूर्णिमा में सी वाटर के राइज होने का
चेंजेस आता है, उसमें चेंजेस आता है। इट इज़ अ ग्रेविटेशनल पुल के कारण उसके सब इसके जोग्राफिकल इसमें उसके चेंजेस आते हैं। तो जोग्राफिकल कंस्टिट्यूशन में जब चेंज आता है तो उसके राइज उसका जो ये है समंदर का जो लहरें हैं वो या तो बहुत ऊंचे होते हैं या फिर वो नीचे स्लोप होते हैं। तो ये जो टाइडल इफेक्ट्स होता है मोस्टली वो हाई राइज होता है। तो ये जो टाइडल इफेक्ट्स है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग व्हाट इलेक्ट्रिसिटी, बट वो 15 दिन के बाद ही आएगा, आफ्टर एवरी 15 days। सो दैट हैज़ टू बी वेट एंड कैन बी जनरेटेड। ओके, नेक्स्ट इज द सोलर पावर। सोलर लगाया, ये लगाई हमने, सूरज से हमने कहा इमीजिएटली हमें ये दो, सन दो और हमें आग लगा दो। ये संभव है? नहीं संभव है। वी हैव टू गो फॉर द प्रोसीजर। वी आपके बहुत जनों के घर में भी सोलर पावर होगा तो इमीजिएटली आता है क्या? नहीं, इट टेक्स बिट टाइम टू जनरेट इट सेल्फ। ओके, देन जियोथर्मल पावर। थर्मल पावर स्टेशंस, यू नो ऑल थर्मल पावर स्टेशंस मतलब जहाँ पर कोल बर्न करके हमें यहाँ मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। Resources are the most part of the world. Potential resources are waiting to be trapped. There are many different kinds of more energies which have to be yet we have to discover, yet we have to even invent many things, and we have to just go and upgrade ourselves to get those potencies of the earthly things. Okay, this is what is the potential resources. Did you understand? Now next comes is the actual resources. The actual resources are properly surveyed and assessed and are being currently used by humans, immediately used by human. For example, would be tons of iron ore and coal which can be extracted from the छोटा नागपुर प्लेटो एंड यूज इन आयरन स्टील प्लांट्स। क्या करते हैं? उसको निकाल कर आयरन हमें पता पत्थर के साथ वो एक्सकावेट करके उसको हम प्रोसेसिंग के लिए इमीडिएटली भेज देते हैं। द एक्चुअल यूज ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द एसेसिबिलिटी, cost of the development and utilization of the technology available, market conditions and other socio conditions and socio-economic factors। इमीजिएटली कन्वर्ट कर लिया, इमीजिएटली उसका आयरन स्टील्स उसको डिवाइड करके डिफरेंट थिंग्स बन गया। उसको हमने टेक्नोलॉजी से और साफ़ सफाई करके उसको निकाल कर एक्सेप्ट करके हमने उसको क्या कर दिया? देन वी हैव पास्ड ऑन टू फॉर द प्रोसेसर एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो हमारे पास, उससे हमने डायरेक्ट मार्केट कंडीशन में लेकर आए। एंड अनदर सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्रीजेज। द सोशल इकोनॉमिक मतलब सोशल सोसाइटी में एक इन्फ्लुएंस होने वाला जो ये है, सोसाइटी में इफेक्ट होने वाला जो कैपिटलिस्ट मैटर है, जो मनी मैटर है, उस पर फ़र्क पड़ता है। ओके, नाउ रिन्यूएबिलिटी ऑफ रिन्यूएबल एबिलिटी। सम रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल by natural or human assistance process, some others are non-renewable। दो तरह के होते हैं, वो भी है renewable and non-renewable। now renewable resources are solar power, wind power, tidal power, then crops, forest, fisheries, wildlife, air and water। Examples of renewable resources are the renewable resources। अभी fish, you know, they can be renewed। अगर इतने full oceans are filled with fish, they can be more and more for means उनकी ये और बढ़ा सकते हैं हम उनको। अगर हम ये करते हैं, पालते हैं, यू माइट बी नोइंग कि कुछ लोगों को फिशरी का काम मीन्स आंध्राज में, हैदराबाद में, वो यहाँ पर इवन कि आप अपना जो ओजरखेड़ डैम है वहाँ पर भी फिशरी के ये किए अंडे डाले जाते हैं ताकि उसमें और भी ज़्यादा ये आए। फिशेस का ये अपने आप नेचुरली भी होता है ग्रोथ और उनका अननेचुरल ग्रोथ भी कराया जाता है। ओके, now they are water are example of the renewable sources। they can be renewed and replenished and in a short period of time। फॉरेस्ट पहले ज़माने में क्या है, पीपल का पेड़ लगाया जाता था जो पता नहीं कितने सालों के बाद उसको बड़े गुड़ इसके बनता था। अभी के ज़माने में कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? अशोका के पेड़ लगाए जाते हैं, देन ओक के पेड़ लगाए जाते हैं, देन वो आजकल कुछ और निकला है ना, ओक, अशोका, देन वी गेट बादाम के पेड़ लगाए जाते हैं, देन वी हैव ऑल दीज थिंग्स। दीज प्लांट्स ग्रो फास्टर।
ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करता है, वुड जल्दी एसेस करता है। साल के पेड़ जो लगाए देते थे पहले ज़माने में, वो साल के पेड़ ऑलमोस्ट 15 ईयर्स 20 ईयर्स उसको लगता था बड़े होने के लिए, तब वो साल का पेड़ बहुत मजबूत ऐसे वुड देता था। पर आजकल के ये जो ज़माने के ये जो फास्ट सिल्वर ओक के पेड़ लगाए जाते हैं, सिल्वर ओक पे पेड़ बहुत जल्दी बढ़ता है, ग्रोज वेरी फास्ट एंड वेरी बहुत स्ट्रॉन्ग वुड होता है। दीज थिंग्स आर मेन यूज्ड फॉर द रिन्यूएबल सोर्सेज। दे कीप ऑन बिन, एक पेड़ काटा तो 4 पेड़ आजकल, एवरीबडी इज बीन कंपल्ड, इफ you are cutting one tree, at least you have to plant 5 trees, so that this renewable forces goes on. They can be renewed and replenished in a short period of time. They are also more easily available and more widely distributed on the non-renewable sources. They have been distributed. Okay. Now now we have to go for the most renewable resources generated themselves either by the cyclic flow process and often continuous, means abiotic sources, और द प्रोडक्टिव फोर्सेस प्रोसेस। रिप्रोडक्टिव किस तरह से बढ़ता है वो रिप्रोडक्टिव, मैंने अभी बताया आपको कि उजड़खेड़ डैम में भी अंडे डाले जाते हैं कुछ तरह के फिशेस का, ताकि उनका उत्पादन ज़्यादा हो, या फिर घर में स्पेशली वो दे आर बीन फर्मेंटेड एंड फर्टिलाइज्ड फॉर ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट पोल्ट्री फार्म्स और आर्टिफिशियली चिकन पोल्ट्री बनाया जाता, ये किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है ताकि उनका ज़्यादा यूज़ किया जाए, उनका ये हो जाता है, द नंबर इंक्रीजेज मोर फास्टर. Okay. Then comes the biotic resource. Okay, then what we are going for the next part is the some renewable sources become non-renewable if they are destroyed by bad management or improper practice. आप एक्सकैवेट करते रहोगे, लेते रहोगे, लेते रहोगे, लेते रहोगे, लेते रहोगे, लेते रहोगे, उसके बाद वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. इट गेट्स बेड, इट गेट्स, जैसे पेड़ पहले हमारे एक बीच में कैसा दौर आ गया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी था. क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन इसीलिए ज़रूरत था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद इतनी कटाई कर दी गई थी पेड़ों की, ताकि इंडस्ट्री बढ़े, ये बिल्डिंग्स बढ़े, ये बढ़े, उसको पेड़ों को बहुत. फिर बाद में पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग किस लिए हो रहा है, क्योंकि इसका कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले निकलता था इट वॉज एब्जॉर्ब बाय द अर्थली मैटर्स, मतलब जो पेड़ में से ही पेड़ एब्जॉर्ब कर लेता था, बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पेड़ों में एक्सेप्ट हो जाता था. पर अभी ऐसा हो कि पेड़ ही नहीं रहे तो उनका देन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, एंड इट इज़ हैजर्डस फॉर ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग ने तब इमीजिएटली क्या किया, दे हैव स्टार्टेड इमीजिएटली शिफ्टिंग ओवर कि प्लांट मोर ट्रीज, प्लांट मोर ट्रीज, प्लांट मोर ट्रीज. पर इतने सालों के जो पौधे आपने काट दिए हैं वो क्या इतनी आसानी से बना ज़रूरी है कि आप आज आपने काटा 12 फीट 15 फीट के पेड़ को, पर आज आप लगा रहे हो 1 इंच के 2 इंच के पेड़ को, इसको बढ़ने के लिए कितना वक्त लगेगा. वॉट अबाउट दैट गैप पीरियड, दैट गैप पीरियड हैज़ टू बी मैनेज. सो this have destroyed are being destroyed just because of the bad management or the improper practice. Did you understand? In USA, for example, some farmlands have lost their topsoil. Land erosion क्या होता है, पेड़ काट देते हो, पेड़ काटने से ऊपर का जो पेड़ क्या पकड़ के रखता है, ऊपर की मिट्टी को होल्ड करके पकड़ के रखता है. पेड़ों के जड़ों में जो ऊपर मिट्टियाँ रहती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखने की आदत है. पर जैसे ही आपने पेड़ काट दिया,